try it out and it's not a life sentence. ट्राई करो, मजा आया कंटिन्यू, नहीं तो फिर वापस से काफ जिंदाबाद. Let's set the language. Are we all cool with English? किसी को हिंदी नहीं आता ऐसा है क्या? हम अंग्रेजों के जमाने के अटेंडी हैं. We can do that too. Like we can just go plain English, but English में मजा है. So we will set the language English. Are we all cool with it? Yes, sir. Awesome. दूसरा, this is not going to be a lecture. This is going to be an interaction between all of us. So be ready. It's not like मैं biochemistry या biology का exam लूँगा आपके सामने बैठ के. But I just want to know your perception about different things, and that's where the interaction part will come in. Cool? तो आप unmute करके मुझसे बात कर सकते हो. You can type it in the chat box. You can use the reactions का button to react. Fair? Awesome. Welcome everyone. My name is Dr. Umesh Wadhwani. जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए, I am a nutritionist and a mental health professional, and I love doing this workshops to mainly see different people because I like interacting with people. और वो interaction में मैं थोड़ा show off कर लेता हूँ मेरे पास जो भी knowledge है वो तुम लोगों को देने का. And in a way, eventually हम दोनों का फायदा हो जाता है. You end up learning something and I end up having good time. ठीक है? बाकी की सारी चीजें मेरे वेबसाइट या मेरे सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी. तो हम सीधा मुद्दे पे आते हैं. Let's talk keto. क्या इमेज क्या है? What is your perception about keto? Good, bad, ugly? What's up? Maybe, sir, good. Good. श्रुति के लिए good है. Good but hard. Good but hard. Good but hard. You need consistency and motivation. You need and it's intense. But consistency and motivation is needed for everything. Difficult to sustain. Why would you say so, Suma? Because I don't know. I can't think of a life without rice and proteins and whatever. ये आया main मुद्दा. Yeah, this is the main issue, ना? This is the main issue. We can't see. हमें बचपन से राइस और रोटी ये दो नामक जो ड्रग्स हैं इतने इंजेक्ट किए गए हैं हमारी बॉडी में कि वी कांट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट इट, व्हिच इज कंप्लीटली ओके. अब क्या करें? वी लिव इन दिस वर्ल्ड ना, तो है बट अगेन इट्स गुड. एनीथिंग एल्स कुछ और परसेप्शन? व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ कीटो? कार्ब्स को रिमूव करके फैट से एनर्जी लेनी है. ओए होए आफरीन जी, थैंक यू सो मच. ऐसे जवाब है ना रामू काका को बड़े पसंद है. Okay. And vegetarians, I think it's difficult for vegetarians too. Relatively, yes, it is. And it's not for non-vegetarians, Bhavesh. It's not only for non-vegetarians. My second question to all of you is, and pehla question remains the same. You can answer the first question as well in the chat box. Second question is, what do you want to take away from this session? कि भाई मुझे इतना पता चल गया ना, आई एम हैप्पी. मेरा 1 घंटा और इनसाइडर पे जाके वो क्लिक करना वो इज वर्थ. व्हाट डू यू वांट टू टेक अवे सो दैट आई नो to make knowledge. My lifestyle choice. You want to make a lifestyle choice. Awesome. पनीर और टोफू में डिफरेंस क्या है? वो जानना है आपको? Yes. Okay, fair. सही है. We won't be covering that in this because that's a very non-keto question, but we will try to. I'm just kidding. We will. Okay. Bhavesh wants to learn something new. Anything else? कीटो से फ्लैट tummy कैसे मिलेगा? Ooh, yes. Straight to the point. I want flat tummy. I want 6-pack abs. Alright. कितने तक कर सकते हैं? मतलब कितने महीनों तक कर सकते हैं? Awesome. That's a good one. Hi Mayur, अपनी शक्ल दिखा दो सबको यार. ऐसे क्या कर रहे हो? ऐसा. Yes. Hi Mayur. Mayur is an old student of mine. I know him for a year and that's that. महेश जी नमस्ते. क्या हाल चाल? नमस्ते. I'm sorry, मैं आपको नमस्ते नहीं बोलना चाहता था, पर ऐसे ही out of respect निकल गया. Yo, what's up? क्या हाल चाल है महेश? All good? Good. Awesome. Good bro.
Good, bro. Yes. So, Mahesh, what we have just started the session, and I just wanted to know all of your perception about the keto word or the keto diet, है ना? So feel free to join in, and we have Mahek ji in the house. Hi, Mahek. Knowledge. अभी पहले 2 सवाल तुम्हारे आ चुके हैं. You can type in the answers in the chat box, and I'm about to start the whole structure. Let's go. कोई मुझे बताना चाहेगा क्या कि क्योंकि हम कीटो डाइट के बारे में जाने उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइट का मतलब क्या होता है. What do you mean by diet? And if you want to answer, please answer it in a way so that a Ramu Kaka can understand as well. Don't मुझे वो भारी भरकम words नहीं चाहिए, हाँ please. I mean, Yes, Preeti. diet is a portion control. हम इस आंसर को लेते हैं. मैं सही या रॉन्ग जज करने नहीं बैठा. I'm just मैं एक आंसर. So portion control. It's one of the concepts. Anything else? Everything balanced, carbs, protein and fats. Anything Perfect. balanced. Carbs, proteins and fats is. Anything else? कैलोरीज जितनी चाहिए उतनी उसमें डाल के जो हम डाइट बनाएंगे. जितनी कैलोरीज चाहिए उतनी डाल के हम डाइट बनाएंगे. ओके. I think diet is everything that we eat a day. Like it's a habit. That's it. तो it is following a process. हम सब लोग सालों से जब से पैदा हुए हैं तब से कोई ना कोई डाइट ही फॉलो कर रहे हैं ना. डाइट इज हमारा वे ऑफ ईटिंग. अगर तुम्हारा वे ऑफ ईटिंग इज कीपिंग यू हेल्दी देन इट्स अ गुड डाइट. एंड अगर तुम्हारे वे ऑफ ईटिंग से तुम्हें प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि तुम्हारा बेली फैट निकल चुका है, तुम्हारे मुंह पे फ्लफी हो चुका है, यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, पीसीओएस, तुम्हारे पीरियड्स रेगुलर नहीं है, कुछ भी इश्यू हो रहे हैं, दैट मीन्स योर डाइट इज नॉट राइट फॉर यू. सो तो सबसे पहले हम इसको क्लियर कर दें कि डाइट इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड. डाइट इज अ वेरी वेरी रिलेटिव थिंग. कुछ चीजें सृष्टि के लिए काम करेंगी और सृष्टि 2 के लिए नहीं करेंगी शायद, बिकॉज वी हैव 2 सृष्टिस. भैरवी के लिए काम करेंगी और नजीम के अकाउंट से जो महक जी आई हुई हैं उनके लिए शायद नहीं करेंगी, है ना. So it is all possible, but diet is not bad as such. So if you have that impression in your head कि dieting का perception, जैसे सबसे पहले प्रीति जी ने बोला ना portion control, it's not portion control. Dieting is not that. Are we clear on that? Yes. Awesome. अब हम बात करते हैं कीटो के बारे में. Let's talk keto. अच्छा, हम कीटो नहीं कर रहे हैं तो अब भी हम जो खाना खा रहे हैं उसको हम क्या बुलाएंगे? Is there a name for it? Carbs loading. Carbs loading नहीं का. See, you are a personal trainer. शर्म आना चाहिए तेरे को. Carbs loading का meaning नहीं पता. So no, it's not carb loading. Any other answers? Unketo diet. Very creative. I love it. So keto के अलावा there are so many different diets, right? So keto, Atkins, then your क्या नाम था उसका, paleo, then vegan, and then there are so many different types of diet, right? But अभी हम जो खा रहे हैं वो वाला, उसको conventional diet बोला तो उसको कोई specific नाम नहीं है. बट अगर तुम बुक्स पढ़ने जाओगे, जो न्यूट्रिशन की बुक्स हैं, कन्वेंशनल कंटेम्पररी बुक्स, उसमें आपको बताया जाएगा कि इट्स रिलेटिवली हाई कार्ब्स, मॉडरेट प्रोटीन एंड लो अमाउंट ऑफ फैट. दिस इज द डाइट दैट वी आर ऑन, है ना. किसी को कुछ आर्ग्यूमेंट हो तो आप मुझे बता सकते हो. दिस इज द डाइट वी आर ऑन एंड आई विल टेल यू हाउ. तुम कोई भी अपना एक मील उठाओ, उसमें तुम्हारा मेजर पोर्शन ऑफ योर प्लेट इज कार्बोहाइड्रेट. इधर रोटी, चावल, सब्जी, दाल, फ्रूट्स, ये तुम्हारा मेजर पोर्शन है. किसी का खाना चावल, रोटी, दाल, सब्जी के बगैर हो इन चारों में से? लाइक अनलेस यू आर फॉलोइंग कीटो, ये 4 चीजें में से 1 या 2 चीजें होंगी, है ना. सो दैट इज आवर मेजर. उसके बाद
हम प्रोटीन्स, अगर तुम में अवेयरनेस है तो तुम रोज खाओगे, अगर नहीं है तो हफ्ते में 2 दिन खाओगे। वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो फर्क नहीं पड़ता। वेजिटेरियन हो तो हफ्ते में 2 दिन मूंग या चना जैसा बनता है। वेडनेसडे इज वन ऑफ द वेरी फिक्स्ड डेज, आई डोंट नो व्हाई। एंड नॉन वेजिटेरियन हो तो भी मीट हफ्ते में 2 दिन आता है घर पे। That's a routine that we are going for, and that is what we call conventional diet. Now, how would keto look like in comparison? किसी को पता है? Fats and protein. Yeah, it's a high amount of fat and protein. High amount of fats and protein. And very low amount of carbs. Very low amount of carbs. So keto From vegetables. If at all added. Low carb. Yeah, so we can explain or like say कि keto is a extreme low carb diet. Extreme low carb diet, right? तो Yes. इसमें तुम्हारे मील्स में चावल रोटी तो भूल ही जाओ। Any grains out of the picture, pulses out of the picture, legumes out of the picture, sugary, honey, jaggery, what other sugary things? Dates. Banana, out of the picture. Out of the picture. Anything that is sugar, out of the picture. So you're not having it. पर यहाँ पे है ना, हमें थोड़ा पॉज लेके थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक और सवाल है आपसे, हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए, पेट भरने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कौन बोला ये? मैं आफरीन। आफरीन, थैंक यू। पेट भरने के लिए। और कुछ देख, हानिया ने सीधा है ना, Nourish your body. satisfy your body, to nourish your body, to live. कोई वो वाले बुरे वाले बच्चों वाले भी जवाब दे दो तुम। टंग को सेटिस्फाई करने के लिए हमें खाना अच्छा लगता है, उसके लिए ये भी जवाब दे दो यार। यू डोंट हैव टू बी गुड बच्चा ऑल के नहीं एनर्जी के लिए मुझे मेरी बॉडी को नरिश करना है। वड़ा पाव को नरिश नहीं करता, सबको पानी पूरी और सब पसंद है। नरिश करने के लिए आया है। वड़ा पाव को नरिश नहीं करता। मुझे क्या बहुत अच्छी लगती है। क्या नरिश बॉन्ड। सी keeping jokes apart, we have two types of people in this world. One Eat to live and live to eat. खत्म हो गई बात वहीं पे। जो एक होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं, दूसरे जीने के लिए खाते हैं। तो मेरा एम ये रहता है कि मैं लोगों को टाइप 1 में से टाइप 2 में ट्रांसफॉर्म करूं। मैं कभी भी आई डोंट वर्क ऑन द गोल्स के वेट लॉस करो या मसल गेन करो, मेरा एम ही ये है। तुम खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ, बिकॉज योर बॉडी, चेक सुना, योर बॉडी see to look at your body there are two different approaches there. One approach is that you shouldn't treat your body like a machine, you shouldn't. But the other approach is your body is the most amazing and adaptive machine on this planet. And when we call something a machine का पूरा mechanism आ जाता है। मशीन को चलने के लिए कुछ चीजें चाहिए, उसके स्पेयर पार्ट्स चाहिए, उसको वो जो मशीनरी होगा तो उसको लुब्रिकेशन भी डालना पड़ेगा। अगर लुब्रिकेशन नहीं डालेंगे तो भी प्रॉब्लम है। एंड देन योर मशीन नीड्स फ्यूल टू रन। एनर्जी तो चाहिए होगा ना हमें। दैट्स वेयर हानिया का जवाब आएगा कि हम खाना मेनली 3 चीजों के लिए खाते हैं। 3 चीजों के लिए। 1 इज द ऊर्जा। तुम्हारा प्रोडक्शन तो होना चाहिए ना, तुम्हारे घने बाल, तुम्हारी सुंदर त्वचा, तुम्हारे मसल्स, तुम्हारे सब कुछ, एवरीथिंग, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। यू नीड प्रोटीन्स फॉर दैट, राइट? देन योर मशीनरी नीड्स लुब्रिकेशन, यू नीड ऑयलिंग फॉर दैट, ऑयल्स, फेयर, एंड यू नीड फ्यूल टू रन। एनर्जी चाहिए ना, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक कार के हिसाब से जो होगा उस हिसाब में डालोगे। हमारी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी को एनर्जी कहां से मिलता है? फूड। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। कौन से फूड में? कार्बोहाइड्रेट।
So I, protein, fats, carbs. actually all the food. Fats and carbs. Thank you very much. So, but if you think about it, जब भी एनर्जी की बात आती है तो हमारे दिमाग में पहली चीज कार्ब्स पॉप करती है. क्योंकि अभी के हमारे लाइफस्टाइल में जो हमारा फूड है उसमें सबसे ज्यादा कार्ब्स है. बट वो तो है ही है. बट डू यू सी द होल सिस्टम अराउंड इट? लाइक तुम्हें एनर्जी कम होगी तो तुम्हें कार्बोहाइड्रेट रिच ड्रिंक दे देंगे. तुम्हें फेंटिंग फील हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट दे देंगे. तुम कोई रेस में भाग रहे हो तो रास्ते में गेटोरेड या ल्यूकोजेड या ऐसी कोई ड्रिंक तुम्हें पकड़ा देंगे विच इज रिच इन शुगर. तो हमारे दिमाग में इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है. इंस्टेंट एनर्जी देता है. सो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. तो उसकी वजह से हमारे दिमाग में हो गया कि एनर्जी का बात आता है तो कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. पता था ये चीज सबको कि या ओके. सो दिस इज वेयर द होल झोल कम्स इन. दिस इज व्हाट द कन्वेंशनल डाइट इज अबाउट. कन्वेंशनल डाइट का ऐसा कहना है कि तुम्हारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट. थोड़ा बहुत प्रोटीन से आना चाहिए और सबसे कम फैट से आना चाहिए. बिकॉज फैट्स तुम खाओगे तो तुम फैट हो जाओगे. सिंपल लॉजिक है. हम सबको फैट लूज करना है. हमने फैट खाया है उसकी वजह से फैट बढ़ा है. और हमें अगर लूज करना है फैट तो फैट कम खाना पड़ेगा. इज इट लॉजिकल? Yes, absolutely. Yeah, this is how the whole thing is working at the moment. This is the major conventional contemporary prescription. तुम डॉक्टर के पास जाओगे, तुम्हें वजन कम करना है तो सिंपली यही बोलेंगे कि भाई तेल कम कर दो तुम्हारे खाने में से, है ना. घी तेल ये सब कम करो तुम्हारे डाइट में से. दिस इज वेरी कॉमन एंड दिस इज द परसेप्शन in our heads. Now, do you think it's the right thing? No. I mean, No, sir. see, I don't want you to say the right things. I want your perceptions. So, अगर even if you feel कि it is the right thing, please share so that हम एक honest conversation कर पाए इसके बारे में. Because when it comes to nutrition and your health, there are only very few things which are like सूरज एक जगह से उगता है. This is a fact, right? वो बहुत कम है because individualization आ जाता है यहाँ पे और प्रेफरेंसेस आ जाते हैं. हमारा एनवायरनमेंट आ जाता है, हमारे प्रेफरेंसेस आ जाता है, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, वो बहुत सारी चीज. तो अगर तुम मुझे बोलोगे ना कि हाँ मेरे को तो ये सही लगता है तो आई कांट आर्ग्यू विथ इट. सो इफ यू फील कि ये वे सही है तो वे सही है. ओके. सो या माय क्वेश्चन इज अगेन, डू यू थिंक इज द राइट अप्रोच टुवर्ड्स ईटिंग के फैट हमें लूज करना है तो हमें फैट सबसे कम खाना चाहिए, प्रोटीन मॉडरेट होना चाहिए एंड कार्ब्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. जिंदगी जीने के लिए हमें वो चाहिए. डू यू थिंक इट्स द राइट वे? No. I don't think so. No, you don't. No, sir. Okay, why? कार्ब्स कम करने चाहिए आई गेस. Why? That's the thing. Insulin spike. Our energy consumption is not that high. Sorry. Chinner is saying insulin के बारे में कुछ बताओ तो जरा. हाँ, कार्ब्स इंसुलिन स्पाइक करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं पर लंबे टाइम तक नहीं देते हैं. ओके, तो उससे नुकसान क्या होगा? तो हमको बार बार भूख लगेगी और हम ज्यादा खाएंगे. उससे नुकसान क्या होगा? तो हम मोटे हो जाएंगे, ओवरवेट होंगे. ओवरवेट हो जाएंगे. गुड वन. ओके, फिर तो अगर हम कार्ब्स मॉडरेट अमाउंट में खा रहे हैं, जितना हमें जरूरी है उतना खा रहे हैं, तो उससे कुछ नुकसान है क्या? फिर नहीं. लगता तो नहीं है. लगता तो नहीं. ओके, फिर सही है. सो द रीजन व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस इज कि मुझे कीटो के नीड तक पहुंचना है. कि व्हाई डू वी नीड इवन कीटो, कि हमें जरूरत है क्या उसकी? व्हाई आर वी डिस्कस, मुझे वहां तक पहुंचना है. दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग द होल थिंग. नाउ व्हेन इट कम्स टू weight loss ना, there are certain things that happen in your body. कोई मुझे बता सकता है क्या कि what is the exact meaning of fat loss to your body? कि तुम्हारी बॉडी में ऐसा तो होता क्या है? What happens कि तुमने डाइटिंग करना शुरू किया तो तुम्हारे फैट के साथ होता क्या है? क्या वो इवेपोरेट हो जाता है, हमारे सांस में से निकल जाता है, सुसु से जाता है, पोटी से जाता है? Where does it go? What happens to the fat? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है.
एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लता ने बोला. एनीथिंग एल्स? as energy. It gets burned as energy, right? It gets Yeah, utilized. energy में. Anyone else has a different answer? नहीं, होता क्या है? एक्सक्रीशन तो चलो समझे कहां से भी निकलेगा, वो इज फाइन, बट होता क्या है? what happens to fat? कैलोरी बर्न. हम जो भी एक्टिविटीज मेटाबोलाइज, या मेटाबोलाइज का मतलब ये है कि यूटिलाइज हो रहा है कहीं. मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म का मतलब है हम जो भी चीजें खा रहे हैं उसको काम पे लगाने की प्रोसेस इज मेटाबॉलिज्म. फिर उसमें से एनर्जी क्रिएट हुआ, चीजें बनी, हार्मोन्स बने, whatever. ओके, तो फॉर दैट टू हैपन तुम्हारी बॉडी को फैट यूटिलाइज करना है एनर्जी के लिए. इट्स अ प्रोसेस. फॉर दैट प्रोसेस टू हैपन तुम्हारी बॉडी में एक एनवायरनमेंट क्रिएट होना जरूरी है. तुम कभी अभी मैं बैठा हूं, हम सब बैठे हैं, तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा है, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक तुम्हारा बॉडी उसके लिए कौन सा एनर्जी यूज कर रहा है? कार्ब्स खाए जो तुमने, वो फैट्स या प्रोटीन्स, क्या यूज कर रहा है? फैट्स. हाउ डू यू नो? The carbs are being used. Carbs में यूज, देन उसके बाद फिर फैट होगा, वो खत्म करते हैं हम. हाँ, पहले कार्ब्स यूज होगा फिर फैट यूज होगा. वो हमारा प्राइमरी सोर्स है. एग्जैक्टली. सो इन अ कन्वेंशनल डाइट तुम्हारा प्राइमरी सोर्स इज कार्बोहाइड्रेट. तो तुमने अगर 1 घंटे पहले ब्रेड सैंडविच या ऐसा कुछ खाया हुआ है, पीनट बटर सैंडविच या कुछ भी, तो तुम्हारे सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट्स हैं. कार्बोहाइड्रेट्स तुम्हारे सिस्टम में जब तक हैं, as soon as the carbs enter your system, insulin is gonna come in. इंसुलिन भाई को जानते हो तुम लोग? Yes sir. काफी कमी नहीं चाहिए. No. काफी. Like, alright, let's talk about insulin. Now, insulin is nothing but a hormone. It's a chemical. And insulin को अगर आप लोगों ने सुना होगा ना, तो 2 अलग-अलग तरीके से सुना होगा. One, if you have a diabetic patient in your house, जिनको डायबिटीज बहुत है तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, राइट? एंड 2, अगर तुमने बायो में थोड़ा ध्यान दिया होता तो वहां पे इंसुलिन करके कुछ वर्ड आया रहेगा और उसको तुमने मगअप कर लिया होगा कि इट्स अ हार्मोन व्हिच मैनेजेस शुगर इन योर बॉडी. दैट्स अबाउट इट. और कोई तरीके से जानता है क्या कोई इंसुलिन को? नो. अच्छा, इंसुलिन का काम क्या है? Managing the glucose level. Sorry? Managing the glucose level. Managing the glucose level. Okay, थोड़ा और simplify करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स को काम पे लगाना. शुगर एब्जॉर्ब करवाता है. यस. शुगर को सेल में स्टोर करवाता है. शुगर को सेल में स्टोर करवाता है. ये तो देखो, इंसुलिन बुरा है, पर मैं गलत इल्जाम नहीं लगने दूंगा इंसुलिन पे. इंसुलिन बुरा, इट डजंट मीन मैं कुछ भी बोलो आप मैं सह लूंगा उसके बारे में. नहीं, इंसुलिन का काम है शुगर को काम पे लगाना. इज एज सिंपल एज दैट. बट उसके साथ साथ, सो तुमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए ना, कार्बोहाइड्रेट, तो इंसुलिन ब्लड में आएगा और वो बोलेगा कि शुगर की कहां पे जरूरत है, ये कार्बोहाइड्रेट की, मेरे को एलोकेट करने दो उसको. तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी तो एनर्जी में यूटिलाइज होगा, अगर नहीं होगी तो वो स्टोरेज में चला जाएगा. एंड स्टोरेज वो फैट के फॉर्म में करेगा. तो this is the first shift that you should make in your mind, regardless if you do keto or not. You should understand this fact that fats are not making you fat. Carbohydrates का excess amount और carbohydrates not being utilized. So तुमने carbs खाए, उसको utilize नहीं किया, तो it's being stored as fat, and that has been happening over years, and that's why we have reached to a stage where we are. If you are trying to lose weight, are you with me? Yeah. उसके बाद एक और स्टेज आता है जहां पे अभी तो क्या है, इंसुलिन है और वो काम पे लगा रहा है ना, इंसुलिन सही से काम कर रहा है.
बट अगर तुम कार्बोहाइड्रेट को अब्यूज करते जाओगे, हम ड्रग अब्यूज, अल्कोहल और ड्रग्स के पीछे अब्यूज लिखते हैं ना, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स के पीछे भी अब्यूज लगता है, बिकॉज वी हैव बीन अब्यूजिंग कार्बोहाइड्रेट. इफ यू हैव बीन अब्यूजिंग कार्बोहाइड्रेट फॉर years, what's gonna happen is इंसुलिन भाई साहब क्विट कर देंगे. जब तुम्हारा पैंक्रियास इंसुलिन बनाना बंद कर देगा, बिकॉज तुमने इतना काम पे लगाया इंसुलिन को शुगर खा खा के, तो पैंक्रियास बोल रहा है मेरे को नहीं बनाना, आई डोंट वांट टू मेक इंसुलिन एनीमोर. दैट्स व्हाट वी कॉल डायबिटीज. वो ऐसे ही नहीं हो रहा है किसी को. इट्स दैट इज द रीजन व्हाई डायबिटिक्स को बोलते हैं कि तुम शुगर मत खाओ, शुगर मत खाओ, शुगर, बिकॉज जिसका काम है शुगर को मैनेज करना, वो भाई साहब है ही नहीं तुम्हारी बॉडी में. दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस करके एक कंडीशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड हैंग इन देयर. वी आर स्टिल ऑन द टॉपिक ऑफ कीटो. ये सारी चीजें समझोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा एक बहुत बड़ा बल्ब एट द एंड कि ओ माय, ओके, मजा ही आ गया. So we are building everything up. Okay, so insulin resistance is a second condition which is related to sugar and insulin, जहाँ पे तुम्हारा pancreas is. शिवम भाई हेलो. हाँ, इंसुलिन तुम्हारा बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, बट काम नहीं कर रहा है इंसुलिन. Like I have a really funny story, but बहुत सारे लोगों ने वो सुन ली है, तो I won't be repeating that. But it's like इंसुलिन को तुमने काम पे रखा हुआ था सिर्फ और सिर्फ शुगर को मैनेज करने के लिए. तुमने उसको बोला था कि आप दिन में बस 7 घंटे काम करना है तुझे, एंड यू आर गिविंग हिम ओवर टाइम, एंड ओवर टाइम में भी इतना काम दे रहे हो कि एक दिन भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं आऊंगा ऑफिस पर, मैं काम नहीं करूंगा, टॉयलेट में बैठ के बस चिल मार रहा है, जस्ट स्क्रोलिंग. सो इंसुलिन के साथ वो हालत हो गई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज दैट कंडीशन. तो हो क्या रहा है, यू आर ईटिंग शुगर, उसको प्रोसेस करने वाला कोई भाई साहब है नहीं, एंड दैट इज क्रिएटिंग अनदर हैवक. So that is making you pre-diabetic. That is giving you conditions like PCOS. सुना है PCOS? Polycystic ovarian syndrome. Yes. Major reason Yes, is sir. insulin resistance. Major reason. और उसके बाद क्या होता है? इंसुलिन की एक और टेंडेंसी क्या है? As soon as insulin comes into your blood, what it does is it locks your fat storage. अभी तुम लॉजिकली थोड़ा सोचो, तुम्हें अगर तुम्हारा फैट बर्न करना है, तो फैट का जो स्टोरेज है उसका ओपन होना जरूरी है, ओपन फॉर बिजनेस. तो तुम्हारा बॉडी उसमें से फैट निकाल के एनर्जी के लिए यूज करे, राइट? दैट्स व्हाट यू नीड फॉर योर फैट टू गो डाउन. बट तुमने कार्ब्स खाया, इंसुलिन आया, तुम्हारा फैट स्टोरेज पे ताला है, तुम्हारा बॉडी इज नॉट गोइंग टू यूटिलाइज द फैट, वोंट बी एबल टू. दैट्स व्हाट इंसुलिन डज. अभी तक पता चला हम क्या बात कर रहे हैं? ओके, ऑसम. Yes, sir. ऑसम, गुड. नाउ अभी तक हमें पता चल चुका है कि बॉडी का एनर्जी सिस्टम क्या है, प्राइमरी सोर्स. हम कार्ब्स अभी बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो हमारा प्राइमरी सोर्स इज कार्बोहाइड्रेट्स. व्हाट इफ हम कार्बोहाइड्रेट्स खाना बिल्कुल बंद कर दें? Do you think is there any problem attached to it? किसी को कुछ लगता है कि मैं कार्ब्स खाना बंद कर दूं, तो what's gonna happen to my brain? I won't feel full. Body would get deficit. Deficit of what? कीटोन्स रिलीज होंगे ना. नहीं, चिनार का जो नामों का मेन वो भूल जाएगा. क्या? कौन बोला ये, पहले मुझे बताओ. Main role functioning of carbs it would forget. Okay. प्रोटीन्स यूज होंगे. Fat adaptation. The body will As start can be trying source to take of energy from proteins. Yes. I mean, like whatever fat is there in the body. Hmm. So instead of carbs being the basic source, fat will become the source of energy. Yeah, that will become. We are coming there, and I know they are the right answers. जैसे चिनार भी बोल रही थी कि fat adaptation and ketones and stuff. But the thing is, जो लोग हेल्थ या मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, उनके पुर्जे थोड़े ऐसे होने लगेंगे, भारी भरकम हम वर्ड्स यूज करेंगे, तो वी विल कम देयर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि डू यू हैव एनी फियर कि कार्ब्स खाना बंद कर देंगे तो ये सब हो सकता है मुझे, एंड आई वांट टू कवर दैट फर्स्ट. सर एनर्जी लेवल लो हो जाएगी, लो फील करेंगे. एनर्जी लेवल लो हो जाएगी. स्मर्थ इज सेइंग वी वोंट फील फुल.
फिर और कुछ? और सर ब्रेन फंक्शन के लिए भी कार्बोहाइड्रेट जरूरी है ना? कौन से फंक्शनिंग के लिए? सर ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। भावेश इज सेइंग यू फील इरिटेटेड। ऑसम। और कुछ? और कुछ? एंजाइटी भी हो सकती है। एंजाइटी हो सकती है, मे बी आई डोंट नो। क्रेविंग्स, पंखुरी बोल रही है, क्रेविंग्स हो सकती है। ओके, एनीथिंग एल्स? स्टेपल फूड कार्ब्स कंटेन करते हैं तो उसको कैसे कट ऑफ करेंगे? क्वेश्चन, दैट्स अ पर्सनल एनवायरमेंटल क्वेश्चन कि हमारा एनवायरमेंट इज Dhaval is saying hormone production is reduced. Okay, fair. All right, let me give you water का प्रॉब्लम रहेगा तो water loss. Good. Water loss हो सकता है. Good. All right, cool. Let me give you a light bulb moment, yeah. And not a lot of you would agree, especially जो medic हैं, मैं चिनार को जानता हूँ, she is one of the medics. बाकी का मुझे exactly पता नहीं कौन medics हैं, but you can argue with me or you can go back to the books and read. हमारी बॉडी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंडेंट है। नथिंग, जीरो। एंड व्हेन आई से कार्बोहाइड्रेट, आई एम सेइंग एक्सटर्नल कार्बोहाइड्रेट। एंड वन फैक्ट जो मेडिक है उनको, जो लोग गूगल मेडिक्स है उनको सबको पता है कि तुम्हारे ब्रेन को एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज प्रोवाइड कर सकता है। दैट्स अ फैक्ट। एंड कभी भी मैं कीटो नॉन कीटो डिबेट में बैठता हूं ना, तो एक देयर इज ऑलवेज वन गाय हु वुड कम टू मी, बट व्हाट अबाउट ब्रेन ओनली सर्वाइव्स ऑन कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। दिस इज आई गेट ऑलवेज, okay, always fair enough, but your body, as I said in the very beginning, your body is the most adaptive machine on this planet, है ना? तो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जहां पे तुम्हारे ब्रेन को जो शुगर या ग्लूकोज चाहिए ना सस्टेन करने के लिए, तुम्हारा बॉडी प्रोटीन को उठाता है, लिवर में ले जाता है, लिवर में प्रोटीन को लिवर है ना ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और वो ब्रेन को पहुंचा देता है। सो यस, ब्रेन नीड्स ग्लूकोज, बट उसके लिए तुम्हें बाहर से कार्ब्स खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बॉडी डज द जॉब बाय इटसेल्फ। It's how magical that is. Like कभी कभार मुझे ऐसा लगता है, मेरा जब भी क्लिनिक या ऑफिस या ऐसा कुछ होगा ना, तो मैंने ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक मंदिर जैसा फोटो भी लगाना है वहां पे, because I love that process so much. I love the whole process of ketosis. I love gluconeogenesis. It's just so sick. It's so amazing. Your body needs glucose. Your brain needs, your brain and RBC, ये दो चीजों को शुगर लगता है, ग्लूकोज लगता है। But then there are so many researches जहां पे एक फोर्थ मैक्रो आता है जो काम लगता है। We will talk about the fourth macro. पर सबसे पहला जो मिथ था वो मैंने क्लियर किया है अभी about keto, कि तुम्हें ग्लूकोज की जरूरत नहीं है। So now let's talk about what exactly keto is. Keto is a extreme low carb diet जहां पे तुम्हारा major food is coming from fats, moderate is coming from proteins, and very few calories are coming from carbs. And when I say very few, below 50 grams of carbs a day. That would differ individually, है ना? But it has to be below. It is very and वो 50 grams जो मैं बता रहा हूँ ना, it cannot come from chocolates, ice creams and biscuits. When it comes to keto ना, you forget about calorie counting and all. You forget about that. यहाँ पे हम खाने के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन से टाइप का खाना अंदर जाएगा। फैट्स है ना, तुम्हें तली हुए समोसे, कचौरी, तुम्हारे पिज्जा, बर्गर्स, इन सारी चीजों में भी तुम्हें फैट्स मिलता है, बट वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट फैट, वी आर गोइंग फॉर द होल फूड, क्लीन कीटो फैट्स, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग इनटू। तो अगर मैं रेशियो बताऊं ना, तो तुम्हारे पूरे दिन के जो खाना है उसमें से 70% खाना शुड कम फ्रॉम फैट्स। 70%. I know it sounds a lot, but 70%. 20% from proteins. Very necessary. Very. And now यहाँ पे आएगा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का डिफरेंस। वेजिटेरियंस के पास वैसे ही प्रोटीन का सोर्सेज बहुत कम है, बट हैं।
यहाँ पे हम जो वेजिटेरियन लोग ऐसे झंडा लेके जाते हैं ना, दाल हैज प्रोटीन एंड चना हैज प्रोटीन, it doesn't work here. Dal and chana doesn't work here because you can't eat pulses, you can't eat legumes, and there is a reason. Sorry, I never mean to insult or undermine anything. It's just me making fun. But carbs जिस चीज में बहुत ज्यादा हैं, उसको हम प्रोटीन का रिच सोर्स नहीं गिन सकते. They can be sources of protein. Now, chana is a बचता ही नहीं है ना. We don't have anything. We will talk about it now. Okay, so for vegetarians, the rich source, like good sources of fats and proteins would be nuts to start with, because nuts have good fat. Like कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि nuts are sometimes made for keto people. Like sometimes I feel, because if you think about it, nuts में 50% के आसपास is pure fat. Pure fat, 25% protein, and थोड़ा बहुत 10-12% के आसपास कार्ब होता है. So nuts is one. Sorry to interrupt you, doctor. Yes, Kulsum. But एक चीज पूछना, अगर आप nuts बोलते हैं तो nuts में क्या सारे ड्राई फ्रूट्स इंक्लूडेड है या फिर स्पेसिफिक चीजों को बोलते हैं? ಅದು ರೆಂಟಿಗೆ. See, सबसे पहले we have to stop calling nuts as dry fruits. Dry fruits is किशमिश and date and ये सब. अंजीर, ये क्रैनबेरीज एंड एप्रिकॉट्स, वो जो फ्रूट्स को ड्राई किया हुआ है, दैट्स ड्राई फ्रूट्स. नट्स आर आलमंड्स, वॉलनट्स, पिस्ताचियोस, मैकेडेमिया, पेकान नट्स, ये सारे हैं नट्स. तो अगेन डोंट गो विद द इंफॉर्मेशन. हमारे हर सेशन की तरह ये सेशन में भी आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर डेटा मैं तुम लोग को भेज दूंगा कि क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते. अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, है ना. We'll clear the concept. So, vegetarians के लिए nuts good source. Dairy में curd, cheese, butter, paneer you can consume. But again, लिखने की भी जरूरत नहीं है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है. Avocado, rich fat, and grab your oils. बाबा घी, butter, मजे से खा सकते हो. Seeds, flax, chia. Flax seeds, chia seeds, go for it. Coconut oil, dry coconut flour. So why dry coconut? I'm just giving you options. मर्जी है, वो वाला भी खा सकते हो. मैंने बोला ना, coconut, dry coconut shredded, coconut का, up to you. Coconut, so these are the options. But again, there is a good range. The only things you can't have is egg, chicken, fish and mutton because you are vegetarian. बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं सबके लिए. ओके, 70% फैट्स, 20% प्रोटीन एंड 5-10% कार्ब्स. छोटू सा अमाउंट. दिस इज गोइंग टू बी द रेशियो. बट ये कैलकुलेट में तुम घुसो उससे पहले हम बात कर लेते क्या तुम नहीं खा सकते और तुम उससे अवॉइड करना शुरू करोगे पहले तो. सो तुम्हारे ग्रेन्स आउट, पल्सेस आउट, लेगुम्स आउट, स्वीट चीजें आउट. Not all the fruits are allowed. So fruits को भी तुम out ही समझो. जो मैं लिस्ट में भेजूंगा वही तुम खा सकते हो. सारे vegetables are not allowed either. Okay. I know you are already like यार ऐसा तो कौन करेगा. But ऐसा कौन करेगा सवाल है ना. I am really excited to do this. में change हो जाता है once we start knowing the benefits of it. No, there is a benefit is one thing. Sorry to yes, pretty go. The thing is, we should feel full. Full, एक तो full feel होना चाहिए, satiety आनी चाहिए, and it should not be a same like I am a foodie person, ठीक है? So I need variety. पर वो सारे restrictions लग जाते हैं. I don't believe in that. I'm really being honest. So again, it comes to taste, no? Then you're only eating for taste, not for the health. नहीं, I think I think मुझे नहीं लगता कि keto diet is tasteless. First of all, but No. I'm saying no. I'll reframe the point. Yeah. So I meant to say is that keto in the first place is not a diet. It should be a lifestyle. It's a lifestyle, yeah. Where you should enjoy making your food. You should enjoy the food that you make. But do I have options to enjoy? In vegetarian, maybe not.
Yeah, that is what my main concern is. Yeah, but like again, what he was explaining, there's a lot of good fats where you can get your energies from. So you don't have to really make it in so many different ways. Even in a few ways, you could enjoy your meals. But वही तो आ रहा है ना प्रॉब्लम कि वैरायटी नहीं आ रहा है. But I don't believe that कि because I am a huge fan of keto and since I'm home अभी तो मेरे घर पे I can't eat meat every day है ना. Conventional conservative हाउस पे तुम ये दिनों पे नहीं खा सकते और रोज तो नहीं ही खा सकते है ना. तो आई एम डूइंग ऑलमोस्ट वेजिटेरियन कीटो यहाँ. तो सी हमें ऐसा लगता है कि वी आर सो फुल ऑफ वेराइटीज व्हेन इट कम्स टू फूड, बट अगर तुम लिस्ट बनाने बैठोगे तो यू आर ओनली ईटिंग 10-15 और मैक्सिमम 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस, और उसमें भी इंग्रेडिएंट्स तो 10-15 के आसपास ही हैं, मेजर वन है ना. तो आई एम नॉट सेइंग कि यू कांट एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे टेस्ट की बात नहीं आती. यू कैन ऐड एनी फ्लेवर्स यू वांट, यू कैन ऐड एनी स्पाइसेस यू वांट. इट्स जस्ट कि यू आर रिप्लेसिंग, you are just completely avoiding carbohydrates, and it's for the right reasons. And I can't emphasize this enough. You can argue with me, anyone. Apart from bodybuilding people, उनके लिए भी मैं एक अलग से सेशन कर सकता हूँ कि you can build muscle on keto. हमारे लाइफस्टाइल में जितने भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है ना, जितने भी, you name a lifestyle condition, stress, hypertension, diabetes, PCOS, hormonal imbalances, joint issues, arthritis, IBS, जो भी, everything has its root in carbohydrate abuse. Yeah, everything. So what I'm trying to say is कि अगर तुम्हें पता है कि इसकी वजह से मैं एक खड्डे में गया हूं, है ना, तो अगर मुझे मेरी सिचुएशन, मेरे को चोट वोट लगी है, मैं खड्डे में गिर चुका हूं, मेरे को चोट वोट लगी है, मेरे को उसको रिपेयरिंग करना है, तो आई कांट कीप ऑन वॉकिंग इन दैट पाथ एंड एक्सपेक्ट माय इंजरी टू गेट हील्ड बाय इटसेल्फ. अगर तुम्हें डायबिटीज है, अगर तुम्हें वेट लॉस कर, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मेन रीजन व्हाई वी ऑल आर ओवरवेट. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एक्सेस कैलोरीज. जो हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बात की ना, इट इज द मेन रीजन व्हाई यू आर ओवरवेट. हमारा जो सबका बेली फैट है, it has not a lot to do with the calories, it has a lot to do with insulin resistance and stress. तो जब तक हम उसको मैनेज नहीं करेंगे तब तक वो जाएगा नहीं. And where प्रीति जी, we will talk more about it on the variety side of it once we have understood the concept of it. ठीक है? Yes, thank But you. I can guarantee, I will send you my diet plan. ठीक है? आप वो फॉलो करके देखना. But I can guarantee you यहाँ पे कि keto is not boring. I'm in love with it, and that's the reason why we are doing this. But I'm not. बार high protein, high fat पे जाती हूँ, then again I come back to carbs, then again I come back. But Preeti ji, it has a lot. It has a lot to do with our bad relationship with carbs, and less to do with the keto diet. So let's talk about the benefits. हमारे पास टाइम कितना है? 8:47. 13 minutes official time. I can stay for 15-20 minutes extra. तो जो लोग जल्दी जाने वाले हैं, प्लीज मुझे चैट में टाटा बोल के जाना, नहीं तो मुझे दुख होता है. I need a closure. I need to say bye bye. Okay, so please do that. All right, so let's talk about the benefits. अभी तक की जितनी भी बातें हुई है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Are we having fun? Yes. Awesome. Yes, it's good info. Thank you. Thank you. Okay. तो लेट्स टॉक बेनिफिट्स. यार, सबसे पहले जो हम सबका, इट्स लाइक इट्स अ पैंडेमिक वे बिफोर पैंडेमिक, द वेट लॉस. सबको पेट कम करना है, सबको वजन कम करना है. दैट्स द थिंग, राइट? नाउ सॉरी, मैंने कुछ खाना खाया था, वो फंस गया था. ओके, सो लेट मी टेल यू, कीटो इज द बेस्ट अप्रोच, रिगार्डलेस कौन से रीजन की वजह से तुम्हें वेट गेन हुआ है. इज द बेस्ट अप्रोच. आई टेल यू व्हाई. हमने कार्बोहाइड्रेट वाली कन्वेंशनल डाइट पे जाते हैं और वापस से फैट बर्निंग का प्रोसेस याद करते हैं. तुम्हें वेट लॉस करना है, उसका मतलब है तुम्हें फैट लॉस करना है. तुम्हें फैट लॉस करना है, उसका मतलब है तुम्हारी बॉडी
फैट को एनर्जी के लिए यूटिलाइज करे. एनर्जी फॉर व्हाट? फॉर व्हाटएवर एक्टिविटीज यू आर डूइंग फॉर दैट. Are we clear on this abhi tak? This is the logic we are going. Now, we have to create an environment where your body doesn't use carbs or protein but fat for energy utilization. ठीक है? Now, when you are doing conventional diet, even जहाँ पे तुम कैलोरी डेफिसिट में भी जा रहे हो, जो मैं बहुत बार तुम्हें बियर और न्यूट्रिशनिस्ट में सिखा चुका हूँ कि कैलोरी डेफिसिट में जाओ कन्वेंशनल डाइट में, तुम्हारा बॉडी विल इवेंचुअली गेट टू योर फैट्स, बट इवेंचुअली विल गेट टू योर फैट्स. समझ रहे हो? तो दिन में तुम 16 घंटे जाग रहे हो, 16 घंटे में तुम जब भी खाना खाओगे कार्ब्स तो जाने वाला है. कार्ब्स गया, इंसुलिन ऊपर गया. इंसुलिन का जब तक इफेक्ट रहा, फैट स्टोरेज पे ताला, और बीच बीच में छोटू सा 15-20 मिनट मिल रहा है, वहां पे तुम्हारा बॉडी फैट को यूटिलाइज कर. लेट्स ब्रिंग इट टू कीटो. तुम कीटो कर रहे हो, 24 घंटा तुम्हारे बॉडी के पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है. इन लाइक 3 days योर बॉडी विल गेट इनटू कीटोसिस. सर मेरे पास एक क्वेश्चन है. अगर आप 1-2 महीने तक कीटो कर रहे हो और मिडली अपने मतलब कार्ब्स या इंसुलिन हाई, जब मतलब चॉकलेट वगैरह ज्यादा खाया तो इंसुलिन स्पाइक होगा, कुछ इफेक्ट हो सकता है बाद में? नहीं, तुम्हारा कीटोसिस अटक जाएगा एंड देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच अगेन. दैट इज अगेन देयर विल बी लाइक नो प्रॉब्लम. कोई इफेक्ट नहीं करेगा तेरी बॉडी को. नो, तेरी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला. तेरा कीटोसिस बंद हो जाएगा, तेरा जो प्रोग्रेस चल रहा है वो एक स्टेप थोड़ा सा बैक जाएगा, बट यू हैव टू स्टार्ट द कीटो अगेन. सो व्हेन वी से कि स्टार्ट द कीटो, उसका मतलब ये है कि तुम आज से लेट्स से तुमने कार्ब्स खाना बंद किया, तो इट डजंट मीन कि तुम्हारा बॉडी इमीडिएटली कीटोसिस में चला जाएगा. तुम्हारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड है, तुम्हारे लिवर के अंदर, तुम्हारे मसल्स के अंदर एंड तुम्हारे ब्लड के अंदर, है ना? तो जब तक वो यूटिलाइज होके पूरा फिनिश नहीं होता, इट मे टेक 3 days, इट मे टेक अ वीक, इट मे टेक 3 weeks, डिपेंडिंग अपन तुम्हारे बॉडी में कितना ग्लाइकोजन स्टोर्ड है और तुम कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हो, राइट? तो लेट्स से तुम्हारी बॉडी में बहुत ग्लाइकोजन स्टोर था, तुमने 2 हफ्ते तक कार्ब्स नहीं खाया, तो शायद तुम्हारा बॉडी अभी तक कीटोसिस में गया नहीं है, तुम्हारा बॉडी का कीटो शुरू ही नहीं हुआ है. दूसरे वीक के बाद तुम्हारा कीटो शुरू हुआ. Now let me tell you, वो 2 हफ्ते में ऐसा नहीं कि तुम्हारा वजन कम नहीं होगा. 2 हफ्ते में you will be like, oh my god, मेरा 6 किलो कहाँ चला गया? And this is like a very clickbaity discussion. I don't like this discussion, but I'm just telling you, just to give you some sort of motivation to get into this. पहले ही हफ्ते में 10 दिन में you will see a drop, and that drop is not your fat loss. 1 gram of carbohydrates or glycogen holds 4 ml of water in your body. तो जैसे ही तुम कार्ब्स खाना बंद कर रहे हो तो तुम्हारा जो स्टोर्ड यूटिलाइज हो रहा है ना, उसका 4 ml निकलता जा रहा. नहीं, once you start doing keto, तो you will pee a lot for the first week or 10 days, right? तो यो पानी निकल रहा है, तो फर्स्ट वीक में यू विल सी अ ड्रॉप, 3-4 किलो का ड्रॉप तुम देख सकते हो पहले ही वीक में. बट अगेन योर बॉडी इज नॉट नेसेसरीली इन कीटो, बट वंस योर बॉडी इज इनटू कीटोसिस, तुम्हारा जो भी स्टोर्ड कार्ब्स गुम हो गया, तुम एडिशनल कुछ डाल नहीं रहे हो, दैट्स वेयर द मैजिक स्टार्ट्स. तुम्हारा इंसुलिन आ नहीं रहा है, मतलब तुम्हारा फैट स्टोरेज पे कोई ताला नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है. तुम कुछ भी करो तुम्हारे दिन में, तुम ऐसे बैठे मेरे सामने सेशंस भी दे रहे हो, तुम्हारे अंदर के जो ऑर्गन्स चल रहे हैं ना, वो फैट्स यूटिलाइज कर रहे हैं तुम्हारी बॉडी में. एंड इट्स जस्ट मैजिकल. एंड वहां से तुम्हारा वो जर्नी शुरू होगा, एंड वंस यू विल स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स, बैंग ऑन. यहाँ पे कोई इंटरप्शन नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कार्ब्स अलाउड ही नहीं है. कार्ब्स आएगा ही नहीं, इंसुलिन आएगा नहीं, फैट पे ताला लगेगा नहीं, फैट एनर्जी बर्न होना बंद होगा नहीं. सो दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू. तुम्हारा फैट लॉस 24/7 चल रहा है. Is the best way to get rid of that body fat if you want. Now that's again very superficial, clickbaity. अगर ये वीडियो का टाइटल में लग देता हूँ कि this is how you can lose body fat quickly, तो ये clickbait हो सकता है. That's that. अब हम मेन बातें करते हैं. तुम्हारा बॉडी वेट इंक्रीज होना, it's a hormonal dilemma. बहुत सारे लोगों ने आपको कुछ और बताया रहेगा, but it's a hormonal dilemma and main hormones are playing. यहाँ पे इंसुलिन जो हार्मोन है ना, जो मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा था, डायबिटीज के बारे में बात कर रहा था, you can actually potentially reverse diabetes with ketosis. Type 1 you mean? Type 2, yeah. Type 2. Type 1 नहीं, Type 2 diabetes. You can fix your PCOS, PCOD with ketosis.
कैसे? ओके, अभी तक हमने जो सारा डिस्कशन किया उसकी वजह से, बिकॉज अच्छा कुलसुम आप बताओ मुझे कैसे अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से। Sorry to put you on spot. Okay, so insulin resistance is the cause of PCOS. Insulin resistance is the cause why you have diabetes. तो अगर तुम इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स कर रहे हो तो यू आर पोटेंशियली रिवर्सिंग दैट कंडीशन. एंड मैं ऐसे ही हवे में बात नहीं कर रहा हूँ. आई कैन मेक यू स्पीक टू माई क्लाइंट्स. जो दूर की बात क्यों करूँ, मैं मेरे भाई से बात करवाता हूँ. 43 years old, last year he got diagnosed with diabetes, and when he got diagnosed, empty stomach, उसका sugar था 225, and after meal was around 470. He has done keto only for 3 months. He doesn't take medicine anymore. तो हो सकता है. It depends. So it can be fixed, yeah, it can be controlled. Reversed, I would say. But see, this is a very tricky thing. ये सवाल है ना, मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपका डाइट मैंने फॉलो किया, मेरा वेट लॉस हो जाएगा. मैं आपका डाइट बंद करूंगी तो मेरा वेट वापस आ जाएगा क्या? This is a tricky question. Now, वेट जो तुम्हारा है वो डाइट बंद करने की वजह से नहीं आ रहा है. वेट तुम्हारा वापस से बुरी आदतों की वजह से आ रहा है. जो चीजों की वजह से तुम्हारा वेट बढ़ा है वो चीज वापस से करोगे तो वेट भी बढ़ेगा. एंड जो भी हम सजेस्ट करते हैं एज अ डाइटिशियन, वी आर नॉट गिविंग यू एनी डाइट, वी आर जस्ट फिक्सिंग व्हाट इज रॉन्ग इन योर डाइट. Yes. है ना? We're not giving you a So we are not giving, we are fixing what is wrong in your diet. तो जो गलत था उसको हमने फिक्स कर दिया, इसकी वजह से तुम्हारा वजन कम हो गया. अब वापस से वो गलती करोगे तो बढ़ेगा वजन. सिंपल है ना? ओके, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस तुम्हारा फिक्स हो रहा है. थर्ड, स्मर्थ आप जो बोल रहे थे फुल नहीं हो रहा है, क्रेविंग्स होगा शायद. इट डजंट. यू ट्राई इट आउट. तुम भाई साहब, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ ना. I am doing intermittent fasting with keto and I don't feel hungry because मेरे meals इतने बड़े होते हैं. Like मैंने 12 बजे खाना खाया तो 4-5 बजे तक मेरा पेट हिलता ही नहीं. It doesn't move and I am full on energy. मैं 12 बजे वाला मील खा के 2-2:30 बजे के आसपास जिम जाता हूँ and I am full on that. Sir, I have just one question for Yes, you. Akansha. I have been doing low carb keto and IF for a long time, on and off though. And it has, like, I want to just validate it because from you people do not, like, it doesn't resonate with too many people. But it does. I have a ADHD condition. I have depression. And of course, because of ADHD condition and binge eating, I had I'm working towards keto. Keto helps like no other thing that I have found ever in 28-29 years. Having said that, sir, I have started weight training lately, and my worry is that during, like, now that I'm having more intense session, I don't completely understand what exactly do I take as a pre-workout drink or something that gives me energy through the workout, because I don't sustain energy. That is the only time when within the state of ketosis I feel like my energy drains out. Awesome. We have a solution, Akansha, right here. आपने keto coffee के बारे में सुना है? Bulletproof coffee, yes. मैं पीती भी हूँ So सुबह. that's your pre-workout. Okay. So for those who are completely unfamiliar with this gem of a coffee, and I'm not even kidding, मैं कीटो और कोई रीजन की वजह से नहीं करता हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ बुलेट प्रूफ कॉफी पीने के लिए कीटो करता हूँ. What is your recipe? I don't have any physical goal. मेरे को वजन नहीं कम करना है. I'm all good. आपका रेसिपी क्या है? What is your recipe? I am sure everybody has different recipe. I have ton of my own, but I would be very curious to try. So मैं तो एक बड़ा सा चम्मच, like tablespoon, I add मक्खन and a tablespoon of ghee with some cinnamon. Yeah. So ये, but let me explain, because हम तो को तो पता है, बाकी सबको पता ही नहीं है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. Okay, so पहले तो तुम्हें ब्लैक कॉफी का फैन होना पड़ेगा. सबसे पहले
You make your conventional black coffee. Okay. पानी में कॉफी जितना आपको चाहिए वो बना लिया गरम. उसके अंदर तुम 1 चम्मच मक्खन डालोगे. मक्खन की जगह पे तुम घी भी डाल सकते हो, राइट? ये दोनों मैं कभी कभार इन दोनों को कंबाइन करता हूँ. देन आई ऐड MCT ऑयल. अगर तुम्हारे पास MCT ऑयल नहीं है तो तुम कोकोनट ऑयल स्ट्रेट डाल सकते हो. इट्स कम्प्लीटली फाइन. ठीक है. सो कोकोनट ऑयल का 15 ml या 1 चम्मच तुमने मक्खन डाल दिया. उसको ब्लेंड करना है. ब्लेंड करे बगैर मत पीना, बिकॉज वो ऑयल ऊपर रह जाएगा, फिर तुम्हें नौशा फील होगा और तुम मेरे को गालियां निकालोगे. वो MCT ऑयल क्या है? MCT oil is a medium chain triglyceride oil. It is extracted from coconut oil. So purer version of coconut oil you can say, but you can do with coconut oil. It's fine. Parachute का जो blue bottle आता है ना, all good. Go for it. And not even kidding, huh? You can. It's an edible oil, by the way. So, हाँ, उन्नति ऐसे नाक कान मत बनाओ. Yes, it is edible. It is. You can. So, सर that मेरा is. भाई Yes, Pankita. या सर मेरा भाई 3 दिन से उसने चालू किया है, तो कीटो? मैं सिर्फ उसके साथ ये कॉफी, मैं कीटो नहीं करती लेकिन हाँ. कॉफी पीती हूँ. See, वही तो like on the first sound of it may sound like कि घी कौन डालता है कॉफी के अंदर. But let me assure you, once वो blend होके एकदम proper frothy latte बनता है ना, तो no one can resist it. It's so, और स्पेशली विंटर में मैं क्या करता हूँ, मैं शाम को लाइक मेरा सेशन वेशन नहीं होगा तो टेरेस पे जाके एकदम टर्मरिक डाल के वो स्टारबक्स का टर्मरिक लाटे, दैट्स व्हाट आई मेक. एंड टेरेस पे जाके जो ठंडी ठंडी हवा चलती है और साथ में कीटो कॉफी, वो मजे ही है. पर कीटो कॉफी के बारे में सेशन नहीं है. दिस सेशन इज अबाउट कीटो. नाउ इफ this is the information that I wanted to convey. Keto diet is an extremely low carb diet जहाँ पे तुम carbohydrates बिल्कुल नहीं खा सकते. High fat, moderate protein. क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते हो वो तुम लोग को मिल जाएगा. But let me ask you this. कौन प्लान कर रहा है लाइक ये सारे डिस्कशन सुनने के बाद? किस को लगता है कि आई कैन? मी सर, हानिया. Okay, हानिया, स्मर्थ. Sir, I have a question, last question, sir. नहीं, लास्ट नहीं होगा. तू 2 सवाल पूछेगी तो ही मैं जवाब दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा. ओके. सर मुझे थोड़ा सा मिथ है. बताओ. जैसे कीटो की डाइट वगैरह होते हैं, फूड प्रोडक्ट, तो सर क्या वो समर में हम कैरी मतलब कर सकते हैं क्या, जिसको IBS की प्रॉब्लम हो या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो? कौन से प्रोडक्ट? क्योंकि इसमें प्रोटीन और फैट ज्यादा रहता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि गैस्ट्राइटिस में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है सर. ऐसा कुछ है सर? नहीं, आई मीन आर यू सेइंग कि कोल्ड होगा तो फिर इन्फेक्शन? नो सर, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाना अगर हम अंडा खा रहे हैं या फिश वगैरह खा रहे हैं समर में सर. नहीं होता वो. नहीं सर. वनडे रोज का वनडे. जी सर मुझे यही थोड़ा डाउट था कि समर में भी हम थोड़े प्रोटीन और फैट वाले प्रोडक्ट ले सकते हैं क्या कीटो डाइट में? यस यू कैन. ओके, लेट्स गो थ्रू थोड़े से ऑब्वियस कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं बोल सकते. ये सारी चीजें हो सकती हैं इफ यू स्टार्ट डूइंग कीटो. तो उसका सॉल्यूशन मैं तुम लोगों को बता देता हूं एंड देन वी विल गो थ्रू द क्वेश्चंस. कोई जा रहा है क्या अभी 1-2-5 मिनट में? 9 o'clock हो चुके हैं. नहीं. Are we all here? कितना प्यार है मेरे लिए. ओह, थैंक यू सो मच. ओके, सो सबसे पहला, इफ यू स्टार्ट डूइंग कीटो फ्रॉम कल से, देयर इज दिस कंडीशन कॉल्ड कीटो फ्लू, है ना? उसमें होगा क्या, तुम्हें थोड़ा सर दर्द करेगा, तुम्हारा ब्रेन फॉग होगा, तुम्हारा एनर्जी लेवल्स थोड़ा नीचे जाएगा फॉर फर्स्ट कपल ऑफ डेज. एंड इट्स ऑब्वियस रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज हमारा शुगर को हम एडिक्शन के साथ कनेक्ट करते हैं. दारू का एडिक्शन, सिगरेट का एडिक्शन, पोर्न का एडिक्शन, देन वी से वी आर एडिक्टेड टू शुगर. वी नेवर से हम प्रोटीन से एडिक्टेड है. शुगर को एडिक्ट, एंड इट इज द काइंड ऑफ एडिक्शन. दैट्स द रीजन जो जब तुम कार्ब्स खाना बंद करोगे तुम्हारी बॉडी में शुगर नहीं जाएगा एंड यू विल फील सम विथड्रॉवल, एंड दैट इज व्हाट इट इज. सो यू विल फील सम, थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा तुम्हें light-headed फील हो रहा है and stuff. This is going to happen for first 2 days. इसको हम कीटो फ्लू बोलते हैं. इसके सिम्टम्स को थोड़ा मिनिमाइज करना है तो मस्त में नमक और नींबू वाला पानी पियो. पूरा दिन.
So जितना भी, because you would need 3 to 4 liters of water here as well. तो तुमने बड़ा sorry to interrupt you. I have a question. ये अगर पहले मैं किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है तो कैन दे कंज्यूम दिस नींबू? yes they can. I know the common perception is कि blood pressure issue है तो तुम्हें नमक कम खाना चाहिए. That's the common perception, right? But that is with all the other things messed up तुम्हारी diet में. यहाँ पे तुम्हारी डाइट इज ऑल गुड, तुम्हारा पानी बॉडी छोड़ रहा है बिकॉज ऑफ तुम कार्ब्स बंद कर रहे हो, तो तुम्हें वो रेप्लेनिश करना पड़ेगा. रेप्लेनिश करने के लिए तुम्हें मिनरल्स भी चाहिए होंगे, बिकॉज व्हेन यू आर लीविंग पानी के साथ तुम्हारा मिनरल भी जा रहा है सुबह, so you need to replenish that. Into giving options for each meal. Sorry, if I want to start the keto, will you give an option for eating? Yes. Will you give us suggestions to eating? Yes. That's what the diet plans would be ना. तो वहाँ पे तो हमारा फिर कोचिंग काम आ जाता है कि हम आपको पूरा बना के दे सकते हैं, क्योंकि आपके प्रेफरेंस के हिसाब से यू कैन ईट दिस इतने बजे. But yeah, you can. Okay. Not a problem. तो salt and lemon water continue, like 1-2 लीटर चक जाने का रोज, साथ में वही रखने का, that will get you through and that is going to continue because तुम्हारा मिनरल लेवल हमेशा ड्रॉप रहेगा बिकॉज ऑफ वाटर बार जा रहा है. सो 1-8 लीटर तो नींबू और नमक वाला पानी यू आर कंटिन्यूइंग. दैट्स वन. तो कीटो फ्लू इज ऑन साइड. 2 Hey, doctor, I'm just taking your leave. Yes, Kanji. Just taking Awesome. Okay, bye. It was very nice listening to you. Bye. Thank you. Pleasure. Bye. Take care. So, Hello, sir. Yes. Me. Yes, Sonal. Is lemon harmful for bones? No, it's not. We can drink every day. Yes, you can drink every day. तुम्हारे बोन्स के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस एंड प्रोटीन्स दे आर मैंडेटरी. अगर वो फिक्स्ड है ना तो बाकी की चीजों का तुम भूल जाओ, टेंशन नहीं लेने का इतना. नहीं सर, एक मिथ है, घर में बड़े बोलते हैं कि बोन्स पेन चालू हो जाएगा आप इतना लेमन ले रहे हो. यार आई नो, बट यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कंडीशन ना बाबा, लाइक बट वो भी वेरी इंडिविजुअल चीज है. सो आर्थराइटिस हो गया, यूरिक एसिड प्रॉब्लम हो गया, वहां पे तुम्हें जॉइंट पेन्स होते हैं और कभी कभार तुम्हारी बॉडी डजंट रिएक्ट गुड टू सर्टेन टाइप ऑफ फूड. ओके, तो अगर तुम्हें नींबू या खट्टा खाने से वो प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो योर बॉडी इज ट्राइंग टू सिग्नल यू कि बाबा मत खाओ, तो यू शुडंट, बट इट्स नॉट अ यूनिवर्सल थिंग. ठीक है, थैंक यू. नो वरीज. ओके, सो जिन को भी सवाल है कि तुम कितनी दिन तक कर सकते हो, this is not a medicine. I'm not prescribing you anything. It's a lifestyle. So there are people, so I know Mahek does it for good. So it's a lifestyle. You can have it as a lifestyle. There is no expiration for it. It's not a prescription के 3 महीने तक ये गोलियां खानी है. This is not a गोली. This is a lifestyle or weight loss. Yes, Mahek, go on. Sorry, I'll interrupt in this in a good way because you're right. It's not a diet. Whenever we are at family functions, so because Nazim and myself have been doing this for almost 2 years now, so whenever we are at a family function, they say, "Oh, so when are you going to get over this? आप ये अभी कब बंद करने वाले हो?" So we tell them that बंद करना तो सवाल ही नहीं है, because now we have realized that this is the actual way of living. This is what your human body is designed to eat. And when you eat the way your human body is designed to eat, you never have to worry about weight gain or weight loss. There is no such thing as weight gain or weight loss. 110%. By the way, if you don't know Mahek, you should check her page out on Instagram. इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे ना, पहले तो इनकी एज वेज पूछोगे ना तो आपको शर्म आ जाएगी. एंड बट आई वुड से पहले जाके इनका इंस्टाग्राम स्टॉक करो, उनको अच्छे से स्टॉक करो, एंड देन उनको ही डीएम करना कि महक आपकी एज क्या है. थैंक यू, है ना. बट थैंक very यू, informative talk, Umesh. Thank you. थैंक यू महक, थैंक यू सो मच. तो ड्यूरेशन इट्स अप टू यू, मर्जी है. मेरा क्या होता है, मैं आई एम ऑन एंड ऑफ. मेरा डिफॉल्ट कीटो, पर कभी मेरे को पानी पूरी खाने का मन करता है तो मैं 2-3 हफ्ते का ब्रेक लेता हूँ. I eat whatever I want to eat in carbs and then I go back to. So keto is my. I'm also same, sir. Yeah, keto is the same. दूसरा
कुछ सवाल और थे नीचे? यस सर। गो ऑन। सर मुझे ये पूछना था कि कीटो के कोई I can't hear you. I can't hear you. I can't Let's hear hear you. this I is can't hear starting. you. I can't hear you. I can't hear you. I can't hear you. I can't hear you. Sir, I'll take a leave. Yes, Mayur, take care. Bye, sir. Nice to meet you. Pleasure, pleasure, Mayur, take care. अच्छा, सब लोग चले जाए उससे पहले हम एक सेल्फी ले लेते हैं यार। आ जाओ यार सब कैमरा के सामने। स्मर्थ, हम लिकर के बारे में बात करते हैं। जस्ट अ सेकंड। The simple answer is yes. Complicated answer is depends which and how much. But we will get into it. Just a second. Thank you. No worries. Screenshot is ready. Hi Shivam. Hi Prachi. Hi Namta. Hi Yash. Good to see you. Hi Chaitali. Hi Bhairavi. Hi Mahesh. What's up? Wapas again. Nice. Hi Suma. Good to see you. Hi. I think we all are here. Yes. Are we? Dhaval, are you coming? Shall we? On a count of 3 and 2 and 1. Awesome. एक और लगेगा because there are 2 screens. And hi Pratika. Hi Trisha. Hello. Let's go. 1 and 2 and 3. Hi Pankaj. Awesome. अमोल भी है। क्या बात है। Nice. All right. Okay. Questions. I have 9 minutes to cover any questions that we might have. जो लोग जा रहे हैं मुझे चैट पे बाय बोल के जाना। And so liquor के बारे में बात करते हैं। So alcohol, it's not going to stop your keto, but it is going to stop ketosis. मतलब हमारा क्या होता है कि तुम फैट कीटोन्स में कन्वर्ट हो रहा है और तुम्हारा बॉडी उसमें से एनर्जी क्रिएट कर रहा है। तो वो जो प्रोसेस है ना वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती है, बिकॉज जैसे ही तुम्हारी बॉडी में अल्कोहल जाएगा तो तुम्हारा your liver is going to prioritize alcohol. Prioritize alcohol first. तो तब तक तुम्हारा कीटोन जनरेट होने का, एनर्जी होने का काम पॉज हो जाएगा। पर जैसे ही अल्कोहल का इफेक्ट जाएगा तो वापस से यू आर इन कीटोसिस। ठीक है? बट you cannot have any alcohol with carbs. So wine, beer is out of picture. You can have whiskey, you can have vodka. And you can't have it frequently. And why am I saying it on a video recording while I'm in Gujarat? Okay. I didn't say that. Smart made me say this. Okay. The other bit was around keto for Sir, I have a question. long-term, bad effects, not good for. I can't hear you, Smart. Your voice is breaking. Sir, I have a question. Yes, Kulsum, go for it. Sir, if you are not going to take carbs, then उसका जो deficient है या फिर उसका जो उसके जगह पे alternate क्या होगा फिर? कार्ब का कोई alternate क्यों? फैट्स है ना, फैट्स ही तो alternate हो रहे हैं कार्ब्स का। Why do you need carbs for that? Like, why do you have to find alternative? Carbs का एक ही काम है एनर्जी देना अभी के लिए, तो उसको रिप्लेस करके तुम फैट से एनर्जी ले रहे हो, बात खत्म हो गई। Fats is giving better energy ना? फैट्स तुम्हें सस्टेनेबल एनर्जी दे रहे हैं, फैट्स तुम्हारे हार्मोन्स बना रहे हैं, फैट्स तुम्हें लुब्रिकेशन दे रहे हैं, प्रोटीन्स तुम्हें एनर्जी दे रहे हैं, प्रोटीन्स तुम्हारे स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। यू डोंट नीड कार्ब्स एनीवेयर, जरूरत ही नहीं। हम एडिक्ट हैं, बचपन से खिलाया गया है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कैसे हो जाएगा। ओके, भाविश इज सेइंग cheat meals during keto. Now, let me tell you, you can do cheat meals, but you have to understand कि जितना बड़ा cheat करोगे उतना देर वापस से लगेगा कीटो के अंदर जाने में। तुम्हें हफ्ता 10 दिन लगा है कीटो में घुसते हुए। तुमने लेट्स से बर्थडे पार्टी पे गया और तुमने चीटिंग करना है तो बर्गर भी खा लिया, केक भी पेल लिया, आइसक्रीम भी खा लिया, ये किया, तो जितना ग्लाइकोजन जाएगा उतने दिन ज्यादा लगेंगे तुम्हें रिकवर होने में, उसको वापस से कीटो जाने में। एंड इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एक बार शेर को खून चखा दिया वापस से तो इट्स हार्ड टू गेट ऑफ। तो मैं तो ऐसा बोलूंगा कि व्हाई,
या तो फिर तुम मेरी तरह एक रूटीन बना लो कि 2-3 महीना करने का कीटो, फिर एक फिक्स ड्यूरेशन रखने का, मैं हफ्ता जाएगा बिंदास. Excuse me, sir. Yes, Amol, go for it. So I have a question. Go for it. So there's a movie on Netflix. It's called The Game Changers. Yes, I've seen it. So it talks about the plant-based diet more than the animal-based diet. Yes. Like the benefits of being a plant-based diet for athletes, for every human being on this planet. Yes. So there's one statement in the movie, and it says that for making a one patty of hamburger of meat, it requires 240,000 gallons of water. Yeah. I know. Gallons of water for that one patty. And more than that, the land is taken away. See, you are talking. मैं अमोल, मैं अभी से मैं देखा है ना, तो मैं तुमको बताता हूँ. Let's come to the question part. Yeah. So the most important part of that question is that the meat product contains 70 to 80% less protein than the raw thing which even the dairy eats, like the plant thing they eat. Like if we talk about the poultry farming and etc., we eat chicken, we eat goat and everything. They eat plants. So basically they digest protein and then we eat them. So why not go directly to the plants and eat plants? Because animals digesting only 70 to 80% less protein. I know what you mean, but the सबसे पहला जो तुम्हारा बाय भैरवी, सबसे पहला जो कंसर्न था वो जो डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था, इट वाज एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न था पूरा, कि भाई मीट प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है कंपेयर टू द वेजिटेरियन फूड. बट इट्स अ वेरी इन डेप्थ टॉपिक. इट्स अ रियली गुड टॉपिक. इनफैक्ट मैंने अभी 2 हफ्ते पहले YFS के साथ उसके बारे में सेशन किया था कि हाउ डज न्यूट्रिशन अफेक्ट क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट. आई हैव अ फुल 1 घंटे का टॉक ऑन दैट, सो वी कैन डू इट ऑन दैट. सो वो अभी हम साइड पे रखेंगे. दूसरा जो आप बोल रहे हो कि भाई भैंस या गाय वेजिटेबल्स खा के इतने बड़े मसल्स बना सकते हैं उनके, तो हम क्यों नहीं? भाई उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट, उनकी बॉडी में एंजाइम्स आर डिफरेंट कंपेयर टू आवर बॉडी. तो यू कैन अप्लाई द सेम प्रिंसिपल्स जो उनकी बॉडी पे चलते हैं वो हम पे चलेंगे. So I have a counter fact to it. Yes, go on. So that so in human beings we have a very large small intestine. Just like every herbivore on this planet has. So every carnivore has a very small intestine as compared to an herbivore. So our body is basically designed to eat plant food, but we are making them eat the meat and all the carnivorous products. So isn't that wrong? I don't think. Mahek, you want to add something to it? Yeah, go on. पर ये हम इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे because there is a session on it. But yeah, go on. Because I have an answer to it, Amol. Don't worry. Mahek, go on. आप कुछ बोल रहे थे? I said that our ancestors live on plants. They always were hunter-gatherers. They always ate meat, what they found. And that's how we are here. तो ये पूरा तुमको पता है, एक छोटा सा मैं फैक्ट दूंगा, इसकी हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा. ये जो ग्रेन्स हैं, दे आर मैन मेड, वो नेचुरल नहीं है. दे आर मैन मेड, ह्यूमन मेड चीजें हैं. हमें अगर जरूरत होती तो नेचर में वो होता है ना. तो हम कभी और उस पर बात करेंगे. अमोल, इट इज नॉट अ कीटो रिलेटेड क्वेश्चन, अदरवाइज आई वुड हैव. स्मर्थ का एक सवाल था अबाउट डायबिटिक्स को ज्यादा टाइम पर कीटो किया, तो आई हैवंट रेड. रंजना, टेक केयर, बाय. आई हैवंट रेड दैट. हैव यू गॉट द आर्टिकल विथ यू? तो मुझे भेजो, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ. बट आई डोंट सी एनी लॉजिकल कनेक्शन देयर. Sure. Hey, I have a question. Yes. Yeah. So, are you going to give a list about what all fruits and vegetables to avoid in? I will. I'm pretty curious about that and about intermittent fasting as well. I will. हमारा next session is about intermittent fasting on Saturday or Friday maybe. Or नहीं, Friday तो नहीं, Friday तो कल ही है. So Sunday को we'll do a session on intermittent fasting. Anything else? Rishika? I have a question. Yes, Pratika. Yeah, so is keto diet
good for people who have kidney problems, be it like high creatinine, because as you say, fat and protein, like they help in increasing the creatinine level and the bun level for kidney issue people. So would you recommend it for those kind of people? I would, but that has to be done under medical supervision for sure. That has to be done under medical supervision for sure. Because I've read a lot of people whose issue has actually increased with the keto diet, especially someone who's got an hereditary issue or something. I was just gonna come there. So if you have normal kidneys, like perfectly functioning kidneys, it is not going to harm you. But if you have damaged kidneys because of some other reason, then your kidneys may find it difficult to process It's supposed like a hereditary issue that's been going on for generations. Yeah. So like my mom has it. I will be getting it as well, probably. Hopefully not, but still. So would you still suggest me to get into keto diet? I would, but उसमें फिर, as I said, it has to be very very closely supervised. कोई भी medical condition. क्या हो रहा है? कौन बोल रहा है ये? Excuse me. Yes, Preeti. Even if like someone has psoriasis, I have a psoriasis. Completely fine. Is it fine to go for do keto? It. Please do it. Please do it. It will work? Yes. Any inflammatory or autoimmune conditions. It's an autoimmune condition. Please do it. Okay, fine. ठीक है. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 महीना 3 महीना करके देखो, आपका वेट लॉस तो होने वाला है. यू आर गोइंग टू फील बेटर. 3 महीने तक तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैन कार्ब्स में नहीं खा पाई. बिग डील. हाँ, I think I will miss that because I am a big fan of rice and अभी तो राइस पे स्विच हो गई मैं ऑलमोस्ट. I eat but less quantity of rice I eat. But in my plate I need some amount of rice. Okay. मैं आपको कॉलीफ्लावर राइस बनाना सिखाऊंगा. Oh my god. Okay, fine. Okay, भावेश, I have read it, पर मैं दूसरों को जवाब दे रहा हूँ तो 4 बार बंदे ने टाइप कर लिया polycystic kidneys. Yes, I saw it. Just बेचारी किडनीज में सिस्ट जो थी ना और बढ़ गई हैं तेरे टाइप करने की वजह से, और पॉलीसिस्टिक हो गया वो. ओके. मेरे को चुप तो होने दे, लाइक मेरे को बीच में गैप ही नहीं हुआ, मैं कैसे तेरे सवाल को एड्रेस करूं. ओके, सो yes, the answer would be same जो मैं प्रतिका को दे रहा था कि if you have already a condition then you should work with so अगर तुम मेरे साथ काम कर रहे हो तो मैं आपके MD मेडिसिन डॉक्टर के साथ टच में रहूंगा. we will do your blood reports and renal function test. मैं देखूंगा कि BUN, क्रिएटिन, यूरिया, यूरिक एसिड सारी चीजों का लेवल क्या है, उस हिसाब से फिर मैं आपको चीजें लिख के दूंगा. so that has to be done in a very supervised thing. But if you have relatively functioning kidneys then no problem, it is not going to cause you any trouble. Sir, I have a question. Yes, Pankita. सर, जैसे मयंक जी ने बोला था कि अगर कीटो कर रहे हो तो आप की बॉडी लाइक वेट लॉस के भी प्रॉब्लम नहीं होगी और गेन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो क्या कीटो से गेन हो सकता है? हो सकता है. मैंने बोला भी है कि वेट गेन इज डिफरेंट देन वेट लॉस. जैसे वेट लॉस में वी हैव टू पुट आवर बॉडी इन अ सिचुएशन जहां पे योर बॉडी स्टार्ट्स यूटिलाइजिंग योर फैट फॉर एनर्जी पर्पस. ठीक है. यू पुट नाउ फॉर वेट गेन यू हैव टू पुट योर बॉडी अंडर अ सिचुएशन जहां पे योर बॉडी अब्सॉर्ब्स एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स एंड क्रिएट्स न्यू मसल्स. इट्स है ना, वजन बढ़ने का मतलब है नया मसल बनना, नया मसल तुम्हारी बॉडी पे चढ़ना. दैट्स व्हाट वी कॉल मसल बर्न, वजन बढ़ना. वजन कम होना मतलब फैट बर्न होना, वजन बढ़ना मतलब मसल बढ़ना. मसल बढ़ने के लिए यू नीड पानी एंड प्रोटीन. बट तुम्हारा बॉडी मसल बढ़ाएगा नहीं जब तक उसको जरूरत नहीं लगेगा. पंकिता, अभी तू रोज सुबह उठती है, ब्रश करती है, टॉयलेट करके, बस ब्रेकफास्ट करके, 4-5 क्लासेस अटेंड करके, शाम को दोस्तों से बात करके, रात को नेटफ्लिक्स देख के सो जाती है. तो तुम्हारी बॉडी को तू कितना भी खाना दे दे, योर बॉडी विल बी लाइक मेरे को जरूरत ही नहीं है तो मैं बढ़ूं क्यों? व्हाई डू आई नीड मसल्स? फॉर दैट यू हैव टू गो टू जिम एंड लिफ्ट. फिर शोल्डर से तुम 10 किलो ऐसे. I would like to. Yeah, you like to. Sorry to interrupt you, sir. Yeah, I like to thank you that what you have suggest me like protein लेने के, उससे थोड़ा improvement हुआ है.
Awesome. Thank you. वर्कआउट और प्रोटीन से इम्प्रूव हुआ है मेरा वेट. Awesome. मजा पड़ी गया. UAE સુધી વાત જવી જોઈએ. पक्का सर. Okay. So that was that, and I think I'm 2-3 minutes over. I have to go. My family is waiting for me. मैं सुबह से लगा पड़ा. So Shruti is saying periods regular नहीं है. Yes, periods regular नहीं है. It is because of insulin resistance, बाबा. हटाओ उसको. हटाओ. एक महीना करके देखो ना क्या प्रॉब्लम है. एंड मैं ये चीज है ना सबसे पहले बोलने लगा था कि आई एम नॉट हियर टू एंडोर्स कीटो, बट आई हैव ऑलरेडी डन इट, सो it's not worth me telling. I'm saying कि do something which works for you, and when I say works for you, I don't mean only for the taste wise. I'm saying तुम तुम्हारी चीजों को फिक्स करना चाहते हो ना. Like I became a doctor to help people, but when I came to know more about medicine, I was like, no, I don't want to follow this medicine ka route, because this route is dependent upon medicines, external chemicals. I didn't want to follow that, and there is a reason why I'm in here. And जब से मुझे nutrition का पता चला, it's so amazing. जो तुम खाना खा रहे हो उससे सारी चीजें तुम फिक्स कर सकते हो, तो why to be relying on medicines? तो ये तुम थोड़ा बहुत अच्छे से करोगे. And this is मेरे लिए कीटो सबसे बेस्ट इसलिए है because it keeps you to a track. बाकी के सारी डाइट में क्या होता है कि तुम्हें ये खाना अलाउड नहीं है, बट इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. तुमने अगर शुगर खा भी लिया तो, है ना. पर कीटो में यू आर नॉट अलाउड कार्ब्स. बात खत्म हो गई. तुम्हें पता है कि तुमने कार्ब्स खाया तो तुम्हें हफ्ता वेट करना पड़ेगा वापस से मेरा रिजल्ट देखने के लिए. इट कीप्स यू कंसिस्टेंट. सो यप. सर सेम प्रॉब्लम मुझे भी है इनरेगुलर पीरियड्स की. तो क्या मैं कीटो ट्राई कर सकती हूँ? बट सर मैं करो, वर्कआउट करो. यू आर नॉट गोइंग अंडर. तुझे खाना कम नहीं खाना है ना, दैट्स द थिंग. खाना कम नहीं खाना है. फैट और प्रोटीन दबा के खाना है. छोड़ दूं. हाँ, दबा के खाना है वो पर. ओके सर. मजे से. जब तक पेट नहीं भरा ना तब तक खाना है मस्त. यहाँ पे इसलिए मजा है ना बिकॉज कीटो में यू आर नॉट काउंटिंग कैलोरीज. यस सर. ओके, यू आर लिसनिंग टू योर बॉडी. तुम्हारा पहला मील खाया तुमने कितना, लाइक लेट्स से अभी मेरा कीटो चल रहा है तो मैं 5 अंडे खाता हूँ मेरे एक मील में, राइट. अक्खे अंडे. तो वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा एक मील में 5 अंडा इज इनफ. पर जिस दिन मैं हैवी वर्कआउट करके आता हूँ तो मेरे को थोड़ी और भूख लगती है. इट्स माय बॉडी ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि भाई तूने एक्स्ट्रा काम किया तो एक्स्ट्रा खाना चाहिए. तो आई हैव मोर एग्स. सिंपल. ऑसम. ऑलराइट, कूल. बाकी का जो भी सवाल है, आई एम 1 WhatsApp away and I'm pretty good at it, as you can all agree. I hope, at least. And thank you so much for all of your kind comments in the chat. मुझे तो पता ही है तुम लोग मुझे कितना प्यार करते हो, पर please let your friends and family know because I want to grow this community. ठीक है? तो please let people know how this workshop went. We'll be doing this workshop very regularly. And Instagram पे तुम लोग अभी तक मुझे follow नहीं करते तो please कर लेना. And thank you so much. Pleasure, Preeti. It was an amazing session, and I hope I will be able to work on this. Try it out, and it's not a life sentence. Try करो, मजा आया, continue, नहीं तो फिर वापस से कार्ब जिंदाबाद, ना? No, I don't think so. I'll go on carb, but okay, I'll try this. Yeah, try this out. Yeah. Awesome. Yep. But ध्यान रखो सब अपना. Dr. उन्नति, सृष्टि, गुलसुम, पंकिता, bye. Bye Pankuri. Bye. Thank Bye you, Yash. sir. Bye Mayak. Bye Rishika. Bye Shruti. Bye. Macrophology. Bye. Bye Shruti. Bye Trisha. Go slowly. Bye Prachi. Bye Namita. Bye Amol. Bye Preeti. Bye Sonal. Bye Rida. Take care. Bye. Bye. Good night.